Hello everyone. I hope you all are good. You all are solving questions, learning things. For now, let us focus on this question. And this one is sent to me by Bilal. And thank you so much for sending this one. And this is the first question on pressure sort of thing, fluid pressure that we are going to do on this platform. So let's start with this one. There is a glass tube which is closed at one end, and this is completely submerged with open end downward. You can see figure 1 ko aap dekho. It is talking about figure 1. So that air column of length 10 centimeter is entrapped inside. So this air column, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का length क्या है? That is 10 centimeter given. Now what we are doing, we are raising this glass tube in the upward sense. So question ये कह रहा है, to what height must the upper end of tube be raised above the level of mercury in the vessel so that level of mercury in tube coincide with that in the vessel. So यहाँ पे देखो वेसल के अंदर ट्यूब के अंदर जो मरकरी लेवल है वो ये है, एंड दिस शुड कोइंसाइड विद द लेवल ऑफ मरकरी इन द वेसल. सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डायग्राम लुक्स लाइक दिस. ठीक है. Also calculate the mass of air if the temperature remains constant at 27 degrees centigrade. So while you are taking this to this diagram, temperature is remaining constant inside the tube. Okay. Area of cross section is given of the tube. Atmospheric pressure value is given in terms of Pascal and also Hg term. Molecular weight of air is given. We are asked to calculate कि finally इसमें कितने length of air trapped है. डन है. सो बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ जाने में ट्यूब के अंदर का प्रेशर अगर तुम्हारा चेंज हुआ है तो क्या होगा. आई मीन एयर का प्रेशर अगर चेंज हुआ है तो क्या होगा. एयर का कॉम्प्रेशन हो सकता है, रेयरफैक्शन हो सकता है, राइट. सो लेंथ विल चेंज. डन है. अब देखो प्रेशर एक्चुअली इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है. लेट्स ट्राई विद दैट. अगर आप एयर के प्रेशर की बात करो, लेट्स टेक अ पॉइंट इनसाइड द एयर. सो यहाँ पे लेते हैं हम, और यहाँ पे लिया हमने एक पॉइंट, और इस पॉइंट से पास करता हुआ एक हॉरिजेंटल लाइन बनाया. हमने पास्कल लॉ में पढ़ा है फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में. इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट देन at every point which lies on the same horizontal level, pressure will be same. So let's call it point A and let's call it point B. So pressure at point A and B is same. Done है. यानी कि pressure at A is what? Pressure inside the vessel that is containing air, राइट. सो उसके नीचे तो मरकरी भी है, बट इस पोर्शन में सिर्फ एयर है, और इस एयर का प्रेशर विल बी सेम एज द प्रेशर दैट इज एट ए, राइट. सो चलो हम इसकी बात करते हैं कि प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ. तो इससे हम प्रेशर इनसाइड ट्यूब निकाल सकते हैं. तो चलो निकाल लो. क्या लिखोगे. प्रेशर एट बी क्या होगा. सो प्रेशर एट बी विल बी जस्ट इसके ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ. प्रेशर एट दिस पॉइंट प्लस रो जी एच दिस हाइट, right. So pressure at this point is what? Atmospheric pressure, that is equal to 76 centimeter of Hg, right. Plus what is this height? This height is basically 10 centimeter of Hg. So उसको हम simply लिख देंगे 10 centimeter of Hg. So pressure inside this tube initially is how much? 86 centimeter of Hg. ठीक है. So this thing we can do. अब आप देखो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा इस केस में इनसाइड ट्यूब. सो इनसाइड एक पॉइंट ले लो. यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया. जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर तुम्हारा यहाँ होगा. बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड हियर प्रेशर इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हियर आल्सो एटमॉस्फेरिक. यानी कि प्रेशर एट इन सेकंड केस कितना होगा तुम्हारा? दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. Now in this process, temperature has remained constant. What does it mean? It has a simple meaning. P1 V1 equal to P2 V2. So P1 तुम्हारा क्या है? 86 centimeter of Hg. V1 क्या है तुम्हारा? Area of cross section into length 10 centimeter. P2 is 76 centimeter of Hg. V2 is what? A into L dash. यही है ना इसका वॉल्यूम? A into L dash. इसका वॉल्यूम क्या था? A into L. So this is this. अब आप इसको कट कर दो, and if sorry ये कैसे कट होगा? कुछ भी कर रही हूँ मैं. इसको आप हटाओ. किसको कट करोगे? ए को कट करो यार. दैट इज व्हाट आई मेंट. सो आप क्या एक काम करो, ए को कट कर लो. अब देखो यहाँ पे एल डैश हमें क्या मिलेगा? 860 बाई 76, एंड दिस विल कम टू बी इक्वल टू 11.315 सेंटीमीटर. ठीक है. सॉर्ट ऑफ. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मास
ऑफ एयर इनसाइड. सो मास के लिए आप सपोज कर लो इस सिचुएशन से ये मास निकालते, सो पीवी इक्वल टू क्या लिखोगे, एनआरटी. पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. क्योंकि पीवी इक्वल टू एन इज मोल, मोल को क्या लिख सकते हैं, मास बाई मोलर मास, आरटी. सो मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीवीएम बाई आरटी. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, सो 1.013 समथिंग इंटू 10⁵, क्योंकि एवरीथिंग यू नीड टू राइट इन एसआई यूनिट. क्योंकि आर का कांस्टेंट 8.314 जो आप लिखोगे दैट इज इन एसआई यूनिट. टेम्परेचर 300 केल्विन, इन केल्विन वी आर राइटिंग. मोलर मास, वॉल्यूम वी विल बी राइटिंग इन मीटर क्यूब. प्रेशर वी नीड टू राइट इन एसआई यूनिट, दैट इज इन पास्कल. सो दिस इज प्रेशर. वॉल्यूम कितना होगा देखो इस केस में, सेकेंड केस यहाँ से ही हम निकाल रहे. तो वॉल्यूम विल बी ए इंटू 11.3 सेंटीमीटर. ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 10⁻⁻4 इंटू 11.3, अप्रोक्सीमेटली ये ले रही हूँ. सो दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम इंटू एम दैट इज 29, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, आर इंटू टी. सो दैट इज 8.314 इंटू टी, दैट इज 300, है ना. सो दिस विल बी योर मास entrapped inside, mass of air entrapped inside. ठीक है. So if you will calculate it, you will be getting something 13.32 milligram. ठीक है. So I hope you have understood this question, and I hope now you are able to make sense of it in a more better way. So yeah, this is all. And even if you got confused somewhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.